2023 World Cup, Times Network's Karishma Singh also spoke to pacer Deepak Chahar. Listen in to this exclusive conversation. He knows what it means to play for India at the highest level. He knows how to handle the pressure of expectations of a 1.3 billion nation. Joining us today is a very special guest, India cricketer Deepak Chahar. Deepak, firstly, thank you so much for being here with us. We are, of course, going to be talking to you about cricket, about World Cup, but most importantly, we're here for a special occasion, which is the launch of D9 Sports. I want to get right into it. What is D9? Tell your fans about it, tell our viewers about it. What is D9 all about? D9, I always thought, when I started playing cricket, I struggled with a lot of cricket shoes. I could afford good shoes because of, I come from a middle class family, and I have my own cricket academy, and I see a lot of kids, struggling with shoes because they can't buy good shoes because all the good shoes, technically good shoes, are very expensive, 10,000 to 14,000, maybe 15,000. So I always wanted to do this, and I always wanted to make a good cricket shoe for kids, and very affordable price, and I was thinking about it from a long time. But recently, even I started struggling with shoes because, if you see Indian team, everyone is getting their shoes, made in Hyderabad, customized for someone, and they all buy tennis shoes and different shoes, and then they customize and then they play. Even I was one of them. And one shoe was costing me around 30,000 because I used to get my shoes from Australia, then convert them to spikes, then courier time, and sometimes I had to wait for those shoes and play with the older shoes. So I was struggling with this, and then I decided I think it's the right time to start own business. I thought I'll make my own shoe now, and which would be very technical. Obviously, when we give feedbacks to the big brands, they don't follow it because I think they have their own set of people, those who make shoes, and obviously, and now I know when the mold is made of a shoe, it cannot be changed. So obviously, when we give them feedback, it's already late. They've already designed the shoe, already make the mold, so it cannot be changed. So I think I wanted this brand to be pupil brand, athletics brand, because I have given my feedback. I have taken feedback from a lot of international players, a lot of IPL players, and then I have taken feedback from all the physios and trainers of Indian team and NCA. So obviously, this shoe has been very technical. At the same time, very affordable price. So MRP of shoes is I think 6,000, less than 5,996. I think. Because if you go lower than this, then you're compromising on the quality, and so I didn't want that. I obviously wanted to give the best shoe, best technical shoe at this affordable price, because our manufacturing cost is higher than a lot of brands because the same brands are being made in the same factory. So I know the manufacturing cost, and they're selling their shoe for 14,000 and 12,000. And at the same time, we have our manufacturing cost higher than them, and we are selling under 6,000. दीपक, कहा यह भी जाता है कि जब क्रिकेटर्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपनी कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, तो एक फैंस को स्पोर्ट्स पर्सन के साथ एक क्लोजर कनेक्ट फील होता है कि हम उनकी जिंदगी का एक पार्ट हैं. क्या आपको भी जब आप लॉन्च कर रहे थे, इसके बारे में सोच रहे थे, तो क्या ये भी आपका एक थॉट प्रोसेस था कि फैन से एक और क्लोजनेस हो जाएगी? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि जब मैं किसी को देखता हूँ अकेडमी में खेलते हुए, उसके शूज, उसके टांगों में मुझे अगर D9 की चीज़ दिखेगी तो आई विल सी ना ये सही चीज़ कर रहा है, लाइक इज वेयरिंग द राइट थिंग, ये इन चीज़ों के चांसेस से कम है. तो मेरा मोटिव था कि ऐसा मैं शूज़ क्रिएट कर पाऊँ. आई हैव ट्राइड. हो सकता है कि इन लोगों को नहीं पसंद आए, कुछ को सूट करे, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती. कुछ को सूट करेगा, कुछ को नहीं करेगा, तो विल ट्राई टू इम्प्रूव. तो एंड ऑफ द डे मुझे क्रिकेट में बेस्ट शूज़ बनाना D9 को. दैट इज़ माई लॉन्गर गोल कि आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद विल इम्प्रूव एवरी डे, विल टेक फीडबैक्स एवरी डे. तो ये ब्रांड वो होना चाहिए जो प्लेयर्स और कंज्यूमर के फीडबैक से चलेगा, रादर देन मी डिसाइडिंग कि क्या होगा, या फिर R&D पीपल डिसाइडिंग व्हाट कंज्यूमर वांट, व्हाट अ क्रिकेटर वांट कि इस जूते में ये चीज़ बेटर हो सकती है, या इस प्रोटीन में ये चीज़ बेटर हो सकती है. तो हम डेली, मतलब जब भी हमें नेक्स्ट लॉट बनाएंगे तो उसमें वो फीडबैक्स लेके ही बनाएंगे. तो आई थिंक ये बहुत कम ब्रांड्स करते हैं. मैंने खुद ने फेस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बना रहा हूँ तो ये सिर्फ जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर की उसको क्या चाहिए वो उसके हिसाब से चलेगा. दीपक, क्योंकि हम आपके फैंस की बात कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं हम आपको वापस कब देखेंगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम रहा है आपके लिए, लेकिन आपकी रिकवरी कैसे चल रही है? वापस कब आ रहे हैं आप? मेरे हाथ में है नहीं वापस आना. आई एम फुली फिट एंड अवेलेबल. अभी इसके बाद हमारी मुश्ताक अली होगी ट्रॉफी. मैं रिसेंटली एक IPL टूर्नामेंट भी खेला,
अभी 2 दिन पहले मैं एनसीए में भी था, वहाँ पे मैंने जो हमारे एशियन में टीम जा रही है एशियन गेम्स में, उसमें उनके साथ प्रैक्टिस करी। सो ऑल गुड। अभी आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी एज ए क्रिकेटर, आपके हाथ में नहीं होती आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, आपका हाथ में होता है तैयारी करके रखना कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप परफॉर्म करो, अच्छा करो, जो कि अभी तक मैं करता आया हूँ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इंडियन टीम में, आईपीएल में, हमेशा मैंने अच्छा किया है। वी अनफॉर्चुनेट पिछले लास्ट जो फैम मेरे को इंजरी होगी थोड़ी बैक की, एंड बैक इंजरी टेक्स टाइम। आपने देखा है सब लोग, सभी जितने भी आप बॉलर्स देखो आप टीम में जो खेल रहे हैं, वो इंजरी के बाद आए तो बैक इंजरीज विल टेक टाइम फॉर अ फास्ट बॉलर। और आपने शायद कहा था कि जब इंजर्ड हो जाते हैं उसके बाद फिर जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। कोई भी इंजरी हो आपको वापस जीरो पे आना पड़ता है। आपको डेली एक कदम चलना है, फिर 2 कदम चलना है, 1 कदम से बॉलिंग करनी है धीरे करके, फिर आप फुल रन अप पहुंचते हो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे बड़ी इंजरी क्रिकेट में आई थिंक बैक की इंजरी होती है, फास्ट बॉलर, क्योंकि उसका 6 महीने का रिहैब होता है। बाकी मसल इंजरी तो 4 हफ्ते 5 हफ्ते में ठीक हो जाती है, बट बैक इंजरी में सबसे टाइम लगता है। तो समझ हैड बैड बैक इंजरी लास्ट ईयर। सो अभी टचवुड सब कुछ ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ तैयारी करना है, जब भी मौका मिलेगा मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपक, क्रिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी एक एक्साइटिंग टाइम है जो भारत में होने वाला है। अभी हम एशिया कप भी जीते, सबने सिराज की परफॉर्मेंस देखी, सब उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। आप जब वो परफॉर्मेंस देख रहे थे तो आपके फर्स्ट थॉट्स क्या थे, और वर्ल्ड कप को लेकर अगर टीम के लिए कोई मैसेज है, क्योंकि शायद सारे आपके दोस्त ही हैं जो वर्ल्ड कप टीम में खेल रहे हैं। 100% ऐसी परफॉर्मेंस बहुत कम आती है। आपके उसको पूछो तो वो भी बोलेगा कि वन ऑफ द माई बेस्ट परफॉर्मेंस इन माई लाइफ। फाइनल में, बड़े टूर्नामेंट में आप ऐसी बॉलिंग करो, बट एज अ क्रिकेटर क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली कैसे बॉलिंग कर रहे हो। आई थिंक सिराज हैज बोल्ड कंसिस्टेंटली वेल लास्ट 1 साल से, वो नंबर 1 बॉलर है ओडीआई का। वो दिखाता है क्यों है। ऐसा परफॉर्मेंस ऊपर वाला करवाता है, कोई भी एथलीट नहीं कर सकता। मैंने भी कभी 6 विकेट लिए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो भी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि उससे बेटर बॉलिंग मैंने बहुत बार किया है। आप सिराज को पूछोगे तो वो बोलेगा शायद मैंने इससे बेटर बॉलिंग कई बार की होगी, बट परफॉर्मेंस आना अलग होता है। सिराज 1 साल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ऐसा फ्लूक नहीं है कि एक दिन था उसको मिल गया। तो आई थिंक हैप्पी फॉर हिम, जो जिस तरह से वो कर रहा है। गुड चांसेस फॉर इंडिया। अच्छा है कि वो इंडिया में वर्ल्ड कप में भी ऐसा परफॉर्म करे तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। और होम एडवांटेज जो होता है, वैसे तो इंडिया जहां खेलती है वहीं होम एडवांटेज हो जाता है। आप भी बहुत बार खेले हैं बाहर इंडिया में, तो अपने देश के लोगों के सामने एक वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेलना, यंगस्टर्स भी हैं, तो कितना एक बड़ा मुकाम रहेगा ये उनके लिए। 100% जो भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते थे, मैंने भी स्टार्ट किया, तो मेरा भी एक एंड ड्रीम ये होता है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, वर्ल्ड कप खेलूं, वर्ल्ड कप जीताऊं। आई थिंक वो भी किसी भी क्रिकेटर का एंड गेम होता है, एंड गोल होता है कि भाई मैं ये अचीव कर पाऊँ। तो वो इंडिया में हो रहा है, और सबने देखा है कि लास्ट टाइम इंडिया में होता है इंडिया जीती थी, तो वो मेमोरी सबके हैं, सबके दिमाग में है। तो सब लोग वो जीना चाहते हैं खुद खेलते टाइम में। तो वो जो उस टूर्नामेंट में आपको एक भी प्लेयर, मतलब जो भी प्लेयर खेलेगा, वो अपनी बॉडी का 110% देगा मैच में। तो वो इतना ही है एक प्लेयर के हाथ में। बाकी रिजल्ट आना तो सामने टीम कैसा खेलती है, क्या कंडीशन है, वो सब कुछ मैटर करता है। बट जो एज अ प्लेयर जो मतलब जो थॉट रहते हैं वो बहुत अलग रहते हैं कि भाई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और जो रात को नींद भी नहीं आती है सही से, मतलब मैच से पहले आपको लगेगा यार मुझे ये करना है, प्रिपरेशन बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो भी खेल रहे हैं, गुड लक टू देम, और होपफुली हम लोग ये को टैकल है। बिल्कुल। और मैच से पहले आपके कोई स्पेशल रिचुअल होते हैं, जैसे कि इंडिया को जिताना है तो ये जूता पहले पहनूंगा, या एक ही जगह पे बैठा रहूंगा। इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होगा, तो क्या ऐसा कुछ होगा कि D9 का जूता पहले राइट पैर में जाएगा या पहले लेफ्ट पैर में जाएगा? कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं करता हूँ। बिकॉज मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज लगती है जीतने के लिए। ना तो जूता नहीं लगेगा, आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। एज अ फैन, एज अ स्पेक्टेटर, कोई रिचुअल? मैं हो ही नहीं सकता फैन जब मैं खुद खेलता हूँ। तो अगर तो आई अंडरस्टैंड द गेम, तो हाँ, बट ये है कि ऐसा जब देखते हो तो आपको खुद को लगता है कि जीतने चाहिए। जब आप नहीं खेल रहे हो तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। जब खेल रहे हो तो अलग प्रोसेस होता है, माइंड प्रोसेस, कि यार मैं ये करूंगा। जब नहीं खेल रहे हो तो आपको पता है कि हाँ एंजॉय करना है। यू वांट इंडिया टू विन, इट जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द गेम। अच्छा दीपक, आपके D9 की हम बात कर रहे हैं, शूज की हम बात कर रहे हैं, क्या कोई क्रिकेटर्स हैं जिनको हम आपका शू स्पॉट करते हुए देख सकते हैं? आपका MS धोनी के साथ एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, हमने बहुत वीडियोस भी देखे हैं। क्या आप उनको D9 का ये शू प्रेजेंट करने वाले हैं या कर चुके हैं? कौन से क्रिकेटर्स आपके लिस्ट पर हैं? हाँ, उन्होंने लास्ट IPL में उन्होंने जूते पहने, हर टॉस में पहन के जाते थे D9 के शूज। उनके लिए स्पेशली कस्टमाइज कराए थे लेदर के, उनको लेदर पसंद है। तो वो आप उन पे ट्राई एंड टेस्ट करके आज उन्होंने भी फीडबैक दिया अपने। अच्छा। कि ये आल्सो लाइक की बहुत कंफर्टेबल है। उन्होंने भाई बहन अपने फीडबैक्स दिए कि ये शूज में होने चाहिए, वो हमने चेंजेस किए हैं बाद में। जैसे शायद कि मैंने कि काफ़ी सारे प्लेयर्स ने पहने हैं। मेरा भाई राहुल वो पहन रहा था 1.5 साल से, वो IPL में भी इंडिया में जहाँ भी खेल रहा है वो है।
और अभी IPL में 3 प्लेयर हैं हमारे, प्रशांत है, एंड्रिकर है, अभी एशियन गेम में 2-3 प्लेयर ने पहना है। तो ये मैं सब जैसे बोल रहा हूँ कि पहला ऐसा ब्रांड है जो ऊपर से नीचे आएगा कि लाइक पहले इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पहना है, फिर IPL प्लेयर्स ने, फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स पहनेंगे, फिर नॉर्मल लड़कों को मिलेगा। तो और उन सबके फीडबैक से तो जब उनको मिलेगा उनको पता होगा कि ये जूता टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या फीडबैक्स जो लें। शायद जो नया बच्चा है जो अभी जिसने खेलना स्टार्ट किया उसको पता नहीं है वैल्यू की क्या क्या होना चाहिए शूज़ में, नॉलेज नहीं है नया, बट जो इतने साल तक खेल रहे, जो उस लेवल पे खेल रहे, उनको पता होता है कि क्या चाहिए उनको। तो ये जनरली ब्रांड्स उल्टा चलते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक जाते हैं। ये ब्रांड हम क्योंकि मैंने बनाया और मुझे पता है कि कैसा कितना होना चाहिए, इसलिए ऊपर से नीचे आया। दीपक, कमर्शियली आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता था कि जब आप शू लॉन्च करोगे तो आपका जो फाइट है वो किन ब्रांड से होगा, D9 वर्सेस अदर ब्रांड, सो आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा बिकॉज यू आर अ ब्रांड योरसेल्फ, सो डिड दैट मेक इट इजियर फॉर यू? नो, वैसे टेक्स टाइम, और मैं उन लोगों से जो ज़मीन से उठा है और मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचता हूँ। पहली बात तो मैं स्टार्ट करते ही compete नहीं कर सकता जो ऑलरेडी 25 साल से 30 साल से जो ब्रांड है और जो लोग काम कर रहे हैं। आप डे 1 में उनसे compete कर नहीं सकते और आप बेवकूफ़ हो अगर आप उनसे compete करना चाहते हो। सो मेरा प्लान यही है कि आई विल गिव माई सेल्फ 10 years टू इंडस्ट्री, देन उनके बराबर उनसे आधा टाइम भी देकर तब मैं डिसाइड करूँगा क्या मैं उनसे आगे हूँ या पीछे हूँ। बट मेरा वो गोल है नहीं, मेरा वो है कि जो जूता पहनता है वो उनके लिए है, उनको अच्छा लगेगा तो ही बात होगी। मैं सिर्फ इतना ही ध्यान दे रहा हूँ कि जूता इतना अच्छा बने कि लोगों को पसंद आए, उनका फीडबैक लेके अगला दोबारा दूसरा बनाएंगे, वो उससे बेटर बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, उससे बेटर बनाएंगे। इस जस्ट प्रॉब्लम आपको होती है क्रिकेट में भी। आप कहो कि मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, अकेडमी में जा रहा हूँ, सीधा कम्पीट करूँ मैं जो इंडियन टीम में खेल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस, क्रिकेट में भी डिस्ट्रिक्ट, रणजी ट्रॉफी, IPL, इंडियन टीम, उधर ऐसे भी हर चीज़ में प्रोसेस होता है, हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको सीखते जाते हो टाइम से। मैं अगर पूछूँ तो 1 साल पहले मेरे को जितनी नॉलेज है आज मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आगे 1 साल बाद पूछोगे तो बताऊँगा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आप सीखते हो, तो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ टू डू एवरीथिंग। आई थिंक बिजनेस में भी वही प्रोसेस है। सो मैं उन लोगों से नहीं बहुत जल्दी भागना चाहता है, क्योंकि मैंने सीखा है, देखा है लाइफ में कि कितना स्लो जाती है, कभी कभी तो बैकवर्ड भी आती है। तो ऑब्वियसली सेम बिजनेस में भी होता है। एंड आई रीड अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, उनके बारे में, उनकी जर्नी सुनो, सब लोग यही कहते हैं जो मेरे साथ क्रिकेट में हुआ है वही हर एंटरप्रेन्योर के साथ उनकी वो लाइफ में हुआ है। शायद मैं वो एक्सपीरियंस है मेरे पास कि कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन से, आई डू इट। दीपक, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। क्रिकेट पे वापस आते हुए मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कुलदीप यादव के बारे में। जिस तरीके से उन्होंने अपनी वापसी की है, जैसा उनका सफर रहा है, आज की डेट में इंडियन टीम के लिए उनको एक हुक्म के इक्के के तौर पे देख रहे हैं वर्ल्ड कप के दौरान? आई थिंक उसने अच्छा कैरेक्टर शो किया, बिकॉज वो टीम से बाहर था, देन इज वर्कड हार्ड। तो एक क्रिकेटर के हाथ में वही होता है कि अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में नहीं होती, बट जब वो नहीं खेल रहा उस पीरियड में वो क्या कर रहा है, आई थिंक उसने अपना पेस इंप्रूव किया, जो उसकी पहले पेस बहुत धीरे थी तो उसने पेस इंप्रूव किया है। अभी वो अच्छा खेल रहा है तो उसका फेस पे बॉडी लैंग्वेज दिखता है, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड होपफुली इंडिया में टूर्नामेंट है तो वो काफ़ी विकेट लेगा और काफ़ी क्योंकि लेफ्टी राइटी दोनों को बॉलिंग अच्छी कर रहा है वो, अभी अच्छी फॉर्म में भी है, तो हमारे इंडियन टीम के लिए काफ़ी अच्छा। दीपक, जाने से पहले एक मैसेज दीपक चहर के फैंस के लिए और उन सारे फैंस के लिए जो भारत को सपोर्ट करने वाले हैं वर्ल्ड कप के दौरान। हम लोग, मुझे लगता है हम लोग जीतेंगे, आप पूरा सपोर्ट कीजिए। और जो लोग भी एथलीट लोग हैं, D9 का शूज़ अगर आपको कहाँ भी मिलता है आप यूज़ करिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल। D9 के प्रोटीन सप्लीमेंट है जो हर आदमी यूज़ करता है आज की तारीख में, यूज़ करना चाहिए जो भी हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, क्योंकि हम लोग 100% सेफ है और बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। सो गुड लक टू एवरीवन एंड cheers India. Deepak, thank you so much for speaking to us and being here on the Times Network. Thank you.